Good morning, students. Yesterday we have done Ampere's circuital law and proof of Ampere's circuital law, and today we will start with applications of Ampere's circuital law. Today we will do 3 applications of Ampere's circuital law. First application, in the first application we will find magnetic field along a straight wire. In the second application we will find magnetic field through a solenoid, and in the third application we will find magnetic field through a toroidal solenoid. So we will start with the first application. In the first application we will find magnetic field along a thin straight wire. In this, first of all we will consider a straight thin wire. हमारे पास XY क्या है? Straight thin wire, and the current which is flowing through the wire XY is I. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ. अब हमें जब भी हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ लगाना है उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक क्लोज्ड लूप. और यहाँ पे हम कैसी लूप ले रहे हैं? अ सर्कुलर लूप जिसका रेडियस हमारे पास क्या है? स्मॉल r. और हमने मैग्नेटिक फील्ड कहाँ फाइंड आउट करनी है? एट द पॉइंट P. और जो हमारा सर्कुलर लूप है इट पासेस थ्रू द पॉइंट P. अब एट द पॉइंट P जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है it is tangent to the circle. Now by Ampere's law integration of B vector dot dl vector is equal to mu naught I, और I क्या है हमारा? current enclosed by the loop. अब यहाँ पे it is clear that B vector और dl vector are in the same direction. So उनके बीच में एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स? 0 डिग्री. If the angle between them is 0 degree, we know cos 0 is equal to 1. So we get B vector dot dl vector is equal to integration of B dl, and B will come out of the integration, and closed integration dl is equal to 2 pi r. तो जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे we will get B into 2 pi r is equal to mu naught I. So B is equal to mu naught I upon 2 pi r. अब ये हमारा एक्सप्रेशन क्या है? This is the expression for the magnetic field along a thin straight wire. Next we have the magnetic field of a long solenoid. अब students long solenoid क्या होता है? Long solenoid is a solenoid जिसकी जो length है it is very much greater than the diameter of the solenoid. कोई भी ऐसा solenoid जिसकी लेंथ हो it is very long as compared to the diameter, उसे हम बोलते हैं long solenoid. अब हमने एक लॉन्ग सोलेनॉइड लिया विच इज कैरिंग करंट आई नॉट. फॉर सच ए सोलेनॉइड, जब जो हम ऐसे जो भी सोलेनॉइड होते हैं उनके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होती है आउटसाइड द सोलेनॉइड इज वेरी स्मॉल एंड इनसाइड इज जस्ट लाइक शोन इन द फिगर. ओके स्टूडेंट्स, सब अब हमें क्या करना है? हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है थ्रू दिस सोलेनॉइड. और अब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? एम्पेयर्स सर्किटल लॉ. एंड द फर्स्ट कंडीशन विच वी नीड फॉर द एम्पेयर्स सर्किटल लॉ इज वी नीड टू कंसिडर अ लूप, अ क्लोज्ड लूप. और इन द प्रीवियस आर्टिकल वी हैव यूज्ड अ सर्कुलर लूप, but in this we will consider a rectangular loop that is ABCD. यह हमने रेक्टेंगुलर लूप ली सच दैट जो AB साइड है सोलेनॉइड उसकी सर्कुलर लूप की इट लाइज इनसाइड द सोलेनॉइड. द साइड CD ऑफ द सर्कुलर लूप लाइज एट अ फार अवे डिस्टेंस फ्रॉम द सोलेनॉइड, एंड द साइड्स AB and BC, AD and BC of the rectangular loop are perpendicular to the magnetic field of a solenoid. Consider a closed rectangular path ABCD in which the side AB is parallel to the axis of the solenoid, and CD, AD are perpendicular. CD is far away from the solenoid. Now applying Ampere's circuital law along the rectangular path ABCD, we have integration of B vector dot dl vector is equal to mu naught I. I क्या है हमारा? total net current which is enclosed by the rectangle. Now the rectangle has 4 sides. तो हम जो हमारी टोटल इंटीग्रेशन है उसे 4 पार्ट्स में स्प्लिट कर देंगे. दैट इज फ्रॉम A to B.
B to C, C to D and D to A. अब इन द केस ऑफ फ्रॉम B to C एंड D to A, हमने पहले देखा था कि जो कंसिडर किया था कि जो इनकी लेंथ है, द लेंथ ऑफ दीज टू फेसेस इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड, मीन्स इसमें जो थीटा की वैल्यू है इट इज 90 डिग्री एंड वी नो cos 90 इज इक्वल टू 0. सो B to C B dot dl and D to A B vector dot dl vector will be equal to 0 and जो C to D है इट इज लाइंग फार अवे फ्रॉम द सोलेनॉइड. और हमने अभी देखा था कि कोई भी अगर लॉन्ग सोलेनॉइड है, फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड B वेक्टर जो भी द मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी लो, सो C to D B vector dot dl vector will also be 0. सो जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके थ्रू आएगी? थ्रू द फेस AB और थ्रू द साइड AB ऑफ द रेक्टेंगल. अब जो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है AB वो हमारे पास क्या है? x. सो द इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर विल बिकम bx. नाउ द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमारे पास क्या है? स्मॉल n. और हमारे पास फेस की लेंथ कितनी है या साइड की लेंथ कितनी है? x. तो x लेंथ में कितने नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे? nx. और इफ करंट इन ईच टर्न में आई नॉट है तो टोटल करंट कितना आ जाएगा? nx आई नॉट. अब इसको हम यूजिंग एम्पेयर सर्किट लॉ वी विल हैव bx किसके इक्वल है? म्यू नॉट आई की वैल्यू क्या है? nx आई नॉट. सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई नॉट. दिस इज द एक्सप्रेशन, दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सोलेनॉइड, which is equal to mu naught n into I naught. Here mu naught is the permeability of free space, n is the number of turns per unit length and I naught is the current through each turn. Next we is saying if solenoid is wrapped on a core of material having absolute permeability mu, then B is equal to mu ni. और mu की वैल्यू क्या है? mu naught mu r. म्यू नॉट म्यू आर, यहाँ म्यू आर क्या है? हमारी रिलेटिव परमेबिलिटी एंड म्यू नॉट इज द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस. और इसमें वैसे हमारे पास जो सोलेनॉइड है उसका जो वो होलो सिलेंड्रिकल होता है, बट वो कहता है इन केस जो वो होलो सिलेंडर है उसमें हम कोई मटेरियल भर दें ऑफ एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू, तो मैग्नेटिक फील्ड विल ऑल्सो बी चेंज. मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम B इज इक्वल टू म्यू एन आई और म्यू की वैल्यू क्या है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर. सो B विल बिकम म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एन आई नॉट. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ टोरॉइडल सोलेनॉइड. पर सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज अ टोरॉइडल सोलेनॉइड. टोरॉइडल इज अ होलो सर्कुलर रिंग ऑन विच अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ वायर आर क्लोजली बाउंड. हमारे पास एक होलो सर्कुलर रिंग है और उस होलो सर्कुलर रिंग के ऊपर अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ वायर क्या है? क्लोजली बाउंड. इट कैन बी व्यूड. और हम इसे कैसे देख सकते हैं? जैसे हमने एक सोलेनॉइड को बेंड कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग. नाउ लेट n बी द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. इट कैरीज करंट I बाय सिमिट्री. अब यहाँ पे सिमिट्रिकली जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इनसाइड द टोरॉइड, दे आर इन द फॉर्म ऑफ concentric circles and direction of magnetic field is tangent to such circle and it is also same everywhere. मतलब इनसाइड द टोरॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू सेम है एट एवरी पॉइंट. नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइडल. Let's take a point P. सबसे पहले see in the figure we have taken a point P and through point P we will draw a circle of radius A. Applying ampere circuital law we will have B vector dot dl vector is equal to mu naught I और एंगल कितना है इसमें? 0 डिग्री. cos 0 is equal to 1. So यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? b इंटू टू पाई ए इज इक्वल टू म्यू नॉट आई. यहाँ पे अगर ईच टर्न में जो करंट है उसकी वैल्यू हमारे पास है आई नॉट, देन आई इज इक्वल टू टोटल करंट क्या हो जाएगा? स्मॉल n इंटू आई नॉट.
therefore B into 2 pi A is equal to mu naught n I naught. और यहाँ पे हम अगर B की वैल्यू निकालेंगे, what will be the value of magnetic field? Mu naught upon 2 pi n I naught upon A. मतलब this is the expression for the magnetic field by the toroidal solenoid. यहाँ पे जो n है that is the number of turns per unit length. I naught क्या है हमारा? टोटल करंट इन ईच टर्न. ए हमारा है रेडियस, जो हमने पॉइंट कंसिडर करा था उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. और अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करते हैं, क्यू पॉइंट कंसिडर करते हैं, कोई भी इनसाइड द कोर आउटसाइड द कोर, तो वहां पे जो हमारी टोटल मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट विल बी इक्वल टू 0. मतलब मीन्स for a toroidal solenoid the magnetic field exists only inside the toroidal solenoid. Okay students, that's all for today. Today we have done the three main applications of the Ampere circuital law.